Hello everyone, this is Naman Mittal welcoming you all back to a very special session wherein we have selected a very interesting and a relevant topic from the exams perspective. तो आज का हमारा टॉपिक है simultaneous elections also called as one nation one election. This is a very relevant topic from the exams perspective as it is in news since past at least 4 to 5 years. तो इसीलिए इसके बारे में आपको निटिग्रिटीज पता होनी चाहिए, आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए with respect to simultaneous elections in India. So let us begin this session, and to all the new learners जो आज हमारे साथ associate हुए हैं for the very first time, please allow me that I can introduce to them few benefits of an academy subscription first. So if you take an academy subscription, then you get access to all the educators, their courses and their classes on the Unacademy's platform. अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस लाइव होती हैं. दैट मीन्स दिस प्रोवाइड्स यू रियल टाइम बेसिस environment which is very much interactive and engaging of the classrooms. You also get test series and doubt clearing sessions out here at regular intervals जो ये ensure करते हैं कि आपका कोई भी ग्रे एरिया ना बचे during this preparation of yours of civil services examination और आपका regular basis पे assessment भी होता रहे. To take an academy subscription you have to download an academy's learning app and install it on your mobile phone, and then you have to choose plus category and the category of the examination that you are preparing for. In our case that category would be UPSC civil services एग्जामिनेशन. इसके बाद आपको मल्टीपल ड्यूरेशंस ऑफर होते हैं ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन रेंजिंग फ्रॉम 1 month to up till 36 months. So you can opt for any duration of the Unacademy subscription suiting your needs and demands. बट द रिकमेंडेड ड्यूरेशन आउट हेयर इज ऑफ 1 year और 2 year. अगर आप एक साल का ड्यूरेशन यहाँ पे ऑप्ट करते हैं then it will cost you 49,500, and if you opt for 2 year subscription plan then it will cost you 72,000 rupees. You can avail extra 10% off by applying my code NAMAN NAMAN, जिससे आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट ही नहीं मिलता है यहाँ पे. You also get my personal guidance and mentorship. The final prices of 1 year and 2 year plan will be reduced after application of my code to 44,550 and 64,800 rupees. सिमिलरली अगर आप ऑप्शनल कोर्स चूज करते हैं देन आपका एक साल का सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 27,500 ऑन विच यू कैन अगेन गेट 10% ऑफ इफ यू अप्लाई माई कोड NAMAN NAMAN, and the final price would be then to 24,750. Now let us directly come on to the topic of the day, that is simultaneous elections. तो ये टॉपिक बेसिकली हमारे पास आया, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द matter that it was raised by the prime minister of our country. So prime minister of our country has repeatedly called for simultaneous elections in our country, that is one nation one election concept and the application of the same. तो हमें ये यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि what do we mean when we say simultaneous elections. हमारा क्या मतलब होता है जब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं. तो बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, एंड एज आई ऑलवेज एम्फोसिस and as I always emphasize on one thing, that these definitions, irrespective of the topic you are dealing, the definitions should be created by you so that it gives ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द इवेल्युएटर. उसको ये पता होना चाहिए कि आपने ये डेफिनेशंस खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से डेवलप करी हैं, ना कि आप रोट लर्निंग के थ्रू इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. तो यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस फर्स्ट. और साइमल्टेनियस इलेक्शंस का बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इट इज बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस विद दोज ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस. तो ये हो गई पहली बात ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन आवर कंट्री. दैट इज वी आर हियर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू सिंक्रोनाइज जनरल इलेक्शंस विद दोज ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस. और अगर हम एब्सोल्यूट रोल आउट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे वी मूव फर्दर एंड वी एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फर्दर टू द थर्ड टियर ऑफ आवर गवर्नेंस विच इंक्लूड्स लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो अगर आप म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन भी साथ में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं देन दैट इज एब्सोल्यूट रोल आउट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस. बट एज ऑफ नाउ
what prime minister in our country is asking for is to get an idea as to how we can implement simultaneous elections wherein we have to attempt synchronization of general assembly elections with the स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो जनरल इलेक्शंस को हमें सिंक्रोनाइज करना है स्टेट असेंबली इलेक्शंस के साथ। दिस इज द प्राइमरी मोटिव एज ऑफ नाउ। इसको लेटर ऑन हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू द थर्ड टीयर, दैट इज टू द लोकल बॉडीज और द म्यूनिसिपैलिटीज if it is required or if we are able to implement its first stage। तो हम इसके फर्स्ट स्टेज की फीजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज हमें लगा कि फीजिबल है, इफ इट इज अ प्रैग्मेटिक और अ प्रैक्टिकल आइडिया, देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट्स एब्सोल्यूट रोल आउट एज वेल। अब हमें यह जानना जरूरी है दैट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। So we basically should be looking for need of such a concept to be rolled out in India, that is simultaneous elections। तो सबसे पहली इसकी नीड जो अराइज होती है that is because of the implementation of model code of conduct। जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस करता है ईसीआई, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो फ्रॉम द डे इटसेल्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट gets implemented either in that particular state where the elections are going to take place, or in case of general elections it takes place or it gets rolled out at the pan India level। तो जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रोल आउट होता है सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ डेट, तो तब से आप कोई भी नया इंपैक्टफुल मेजर नहीं यहां पे लॉन्च कर सकते हैं, विच विल इंक्लूड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो कोई भी आप इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नई पॉलिसीज, नई स्कीम्स नहीं लॉन्च कर सकते हैं। तो दिस बेसिकली हैम्पर्स द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में ऑल्दो जनरल इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, इफ गवर्नमेंट सस्टेन्स फॉर दोज 5 years, जो यूजुअली हम देखते हैं कि 5 साल तक हमारे यहाँ गवर्नमेंट एटलीस्ट सिंस पास्ट 2 decades सर्वाइव कर रही है। बट वेन वी लुक एट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, देन हमें यहां पे एक चीज देखने को मिलती है कि हर साल हमारे देश में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं किसी ना किसी स्टेट के। सो इन दैट मैनर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हर साल हमारे देश में इंप्लीमेंट होता है, ईदर इन बिट्स एंड बाइट्स or at the pan India level। So this makes our country to be continuously in election mode। हम continuously election mode में होते हैं हर साल, at least for some duration of a particular year we are in election mode। तो इससे गवर्नेंस हमारे देश में अफेक्ट होता है एटलीस्ट एट द पैन इंडिया लेवल और एट दैट पर्टिकुलर और इन दोज पर्टिकुलर स्टेट्स वेयर द इलेक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो पहला यहाँ पे रीजन है कि इसको हमें बेसिकली एलिमिनेट करना है, इसको हमें अवॉइड करना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये दोनों इलेक्शंस आप एक ही टाइम पे कराओ, ताकि बाकी के जो 5 साल हैं जब सरकार बन के आएगी, सो दे कैन emphasize more on the development and governance related aspects। सेकेंड, यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के एंगेजमेंट की हम बात करते हैं। सिंस वी आर इन अ कंटिन्यूअस इलेक्शन मोड, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हमें यहां पे प्रोवाइड करना पड़ता है टू द एरियाज वेयर इलेक्शन इज टेकिंग प्लेस। एंड अकॉर्डिंग टू माधव गोडबोले कमिटी, जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ा था, दैट ही सेज सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशली सीएपीएफ should not be distracted from their primary objective or from their primary mandate। तो इनको ये एक्स्ट्रा बर्डन से आपको अनबर्डन करना है। And these forces should be deployed for their mandate, for their specific purposes like counter-insurgency operations, or if their mandate is to become or to be a border guarding force। तो इनको आप वही काम करने दो, इनको आप स्टेट गवर्नमेंट्स के एड एंड असिस्टेंस में मत इंक्लूड करो। फॉर दैट यू ऑलरेडी हैव वेरियस अदर फोर्सेस इंक्लूडिंग स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड
इंडियन रिजर्व बटालियन IRB फोर्सेस। तो ये बाकी आपके पास फोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। सो यू कैन फ्री दी सिक्योरिटी फोर्सेस। और अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस आपके देश में, इंडिया में इंप्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली आप यहां पे फिर से इंश्योर कर सकते हैं कि सिर्फ एक बार इनका डिप्लॉयमेंट होगा एंड देन फॉर द नेक्स्ट 5 years दे कैन वर्क और दे कैन वर्क टूवर्ड्स देयर कंप्लीशन ऑफ देयर मैंडेट। वो अपने मैंडेट के लिए काम कर सकते हैं। तीसरा यहां पे जो नीड आती है दैट इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस ड्यू टू मल्टीपल इलेक्शंस, ड्यू टू our continuous election mode, we in a manner shell out more number of finances। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के केस में देखा, एंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे इलेक्शन मशीनरी पे खर्च करता है। इतना उसको स्टाफ पे खर्चा करना पड़ता है, इलेक्टोरल रोल्स पे खर्चा करना पड़ता है और पूरे अपना रेगुलेट करने में उसको ये खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा हर साल करना पड़ता है बिकॉज हर साल किसी ना किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन हमारे देश में उस वक्त हो रहा होता है। सो दिस कैन बी इजीली अवॉइडेड और दिस कैन बी फर्दर ऑप्टिमाइज्ड एटलीस्ट इफ यू गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। यहां पे फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की बात हो रही है तो मैं एक और पॉइंट यहां पे इसमें ऐड करना चाहूंगा दैट हमारे देश में इलेक्शन से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। फर्स्ट इज दैट ऑफ यूज ऑफ मनी पावर। ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन के टाइम पे यूज ऑफ मनी पावर, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाती है। एंड देयर इज ऑल्सो criminalization of politics. So again, if you can ensure that at a single time you can go for elections or you can conduct elections in our country, तो ये चीजें भी डेफिनेटली कर्ब होंगी। इन चीजों पे भी आप धीरे धीरे इनको रिड्यूस कर सकते हो। अभी आपको हर साल ये देखने को मिलता है कि हर साल क्योंकि किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शंस हैं तो वहां पे या तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या ब्लैक मनी का फ्लो हो रहा है या कहीं ना कहीं से वहां पे यूज ऑफ मनी पावर का आपको इशू न्यूज में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है और इससे डायरेक्टली लिंक्ड है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये दोनों चीजें हमेशा हमारे देश में एग्जिस्ट करती रहेंगी जब तक हम इसमें कोई और इफेक्टिव रेगुलेशन लेके नहीं आते हैं या हम इसमें कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, दैट बेसिकली टेल्स अस दैट देयर आर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज इन आवर कंट्री। कभी भी इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज टेंड टू कम आउट विद देयर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, सच पॉलिसीज विच आर वेरी मच अट्रैक्टिव बट आर एक्चुअली हॉलो। तो उनका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कभी भी उनका इंप्लीमेंटेशन इन टोटो हम नहीं इंश्योर कर पाते हैं। बट सच पॉलिसीज आर डेफिनेटली पॉपुलर। जैसे एक गवर्नमेंट ने बोला कि हम अगर इलेक्ट हो गए तो हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। नाउ दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज उसमें बहुत सारे इंटरलिंकेजेस होते हैं ऐसे इश्यूज में, बट वो मुद्दे लोगों को हिट करते हैं और लोग उन मुद्दों के कारण उन पार्टीज को इलेक्ट करती हैं। तो क्योंकि हमारे देश में हर साल इलेक्शन होते हैं और हमारे देश में नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन पॉपुलिस्ट पॉलिसीज में अपने आप को इंडल्ज रखती हैं और क्योंकि वो अपने पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, पॉपुलिस्ट एजेंडास को शन नहीं कर पाती, एंड सो वी basically fail to implement our major objectives और policy related directives। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स हमारे देश से, स्पेशली हमारे पॉलिटिक्स से खत्म नहीं हो पा रहा है एंड वी आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स रियलिज्म, दैट इज टूवर्ड्स प्रैक्टिकल डायरेक्टिव्स और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे नीड है दैट व्हाई वी शुड गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। But the next question that immediately comes to our mind is it practically feasible or is it practically possible? Then there are again many points, many suggestions which say that
yes we can in a manner go for simultaneous elections. तो हम देखते हैं कि वो क्या बेसिक मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं. तो फर्स्ट टू मेजर्स आर बेसिकली सजेस्टेड बाय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टैंडिंग कमिटी. तो स्टैंडिंग कमिटी और लॉ कमीशन ने they have come out with certain measures which help us to go or move forward with this particular concept of simultaneous elections. लॉ कमीशन ये बोलता है कि अगर आपको एक साल में इलेक्शन करना है ऑफ जनरल इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस so that such governments can sustain for next 5 years, and for next 5 years you need not go or indulge into election process. तो ये 5 साल तक अगर आपको इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है तो ये बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. So you will have to come out with a more practical manner. तो लॉ कमीशन ने यहां पे बोला दैट आप यहां पे इस इलेक्शंस को ब्रेक कर दो इन 2 फेजेस. फर्स्ट फेज में आप यहां पे मेंशन कर दो कि अगर एक साल में इलेक्शन होता है तो यहां पे आप कुछ स्टेट्स को साथ में क्लब कर लोगे विद दैट ऑफ जनरल इलेक्शंस, एंड इन द सेकेंड फेज विच कैन बी कंडक्टेड आफ्टर 2.5 ईयर्स. जैसे कि 5 साल की अगर टोटल गवर्नमेंट चलती है हमारे देश में तो आपने एक इलेक्शन किया फर्स्ट ईयर में, यहां पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई एंड इट्स फंक्शनिंग हैज नाउ गॉट स्टार्टेड. फिर 2.5 साल बाद जो रिमेनिंग स्टेट्स थे उनको आप क्लब कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस. So in that manner actually you have made a mechanism कि आपके हर साल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आपके 5 साल में 2 बार इलेक्शंस हो रहे हैं. So this is more optimistic kind of idea, and this will although it will not lead to exact rollout of simultaneous elections, but definitely it will help you to arrive at some form of simultaneous elections. at least जो आपके हर साल इलेक्शंस हो रहे थे उनको आपने अब रिड्यूस कर दिया है टू ट्वाइस इन 5 years. यहां पे स्टैंडिंग कमेटी का एक ओपिनियन आया. स्टैंडिंग कमेटी ने यहां पे बोला दैट यहां पे आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है जिसका टेन्योर 6 मंथ में खत्म होने वाला है उसको आप यहां पे क्लब कर सकते हैं. सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट जिसका टेन्योर 6 मंथ्स के बाद खत्म होने वाला है उसको आप नेक्स्ट इलेक्शन में इंक्लूड कर लो. तो अगर जैसे आज हमारे देश में जनरल इलेक्शन होना है तो आज से 6 महीने बाद जो जो स्टेट गवर्नमेंट्स का टेन्योर खत्म हो रहा है उनके इलेक्शंस को हम क्लब कर लेंगे विद दैट ऑफ जनरल इलेक्शंस. तो सिंगल मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है एंड व्हाट वी आर अचीविंग द रिजल्ट्स ऑफ general election and also of those states where election could have taken place in the next 6 months. तो दिस इज अ बेटर आइडिया और इसको आप क्लब कर सकते हैं विद द आइडिया ऑफ लॉ कमीशन. तो ये दोनों आइडिया को अगर आप मर्ज कर देंगे देन यू कैन कम आउट विथ एन ऑप्शन जिसके थ्रू आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि 2 बार इलेक्शंस होंगे हमारे देश में 5 सालों में, और हर साल की जो मशीन है आपके इलेक्शंस की दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज इलेक्शन मोड, कंटिन्यूअस इलेक्शन मोड ऑफ इंडिया, दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू twice in 5 years. Then there is a opinion again that you can club all by elections in a particular year on an annual basis. तो by elections को आपको regular basis पे hold नहीं करना है. बाय इलेक्शंस को आपको रेगुलर बेसिस पे होल्ड नहीं करना है कि जैसे ही सीट वेकेंट हुई उसके 6 महीने बाद आपने इलेक्शंस होल्ड कर दिए. यू नीड नॉट हैव टू गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ प्रोसेस. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वेट फॉर 1 year, लेट ऑल द सीट्स accumulate, let all the seats
कम आउट इन अ प्रॉपर मैनर, और जितनी सीट्स अवेलेबल दिखाई दें एक साल बाद आप सबके इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवा दो at pan India level. So this again will ensure some form of uniformity, rationalization and definitely cost optimization. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने आया है. Then there is an idea of empowering parliament. You have to empower parliament for any such kind of a thing to take place in India, because if you want to extend the duration of state government by 6 months, for example, or if you have to reduce the duration of a state government again by certain amount of month. देखिए, अब जैसे आपने पहले साल में इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, यहाँ पे डेट आई कि जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं मई 2021 में फॉर एग्जाम्पल. तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का टेन्योर इस वक्त खत्म ना हो रहा हो. कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हो जिनका दिसंबर 2021 में खत्म हो रहा है टेन्योर, कुछ हो सकती हैं कि जिनका जनवरी में खत्म हो रहा है 2021 के. तो यू नीड सम पावर्स कि ये जो जनवरी वाला स्टेट गवर्नमेंट है इसको आप क्लब कर सकें विथ मई, एंड ये जो दिसंबर वाला स्टेट गवर्नमेंट है इसको आप रिड्यूस कर सकें एंड क्लब कर सकें विथ मई 2021. And under the existing constitutional scheme and the powers provided to the parliament, you cannot do that. So you need to empower parliament, you need to provide or come out with certain amendments to the constitution of our country. And the last option out here is, please replace no confidence motion with the constructive no confidence motion. तो no confidence motion को आपको replace करना है with constructive no confidence motion. डिफरेंस क्या है? As of now, अगर कोई no confidence motion पार्टी लेके आती है against a ruling party, then that party does not have to come up with alternative government option. They just have to present no confidence motion in the ruling party. लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो इसमें एक रूल मैंडेटरी हो जाता है दैट यू कैन ओनली कम अप विथ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन व्हेन यू हैव एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. If you can form government or if you can suggest how next government would be formed, so that consistency is maintained and there is no instability in terms of political rule or इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का वैक्यूम ना क्रिएट हो, एक ऐसा हम फेज ना देखें जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो, ब्यूरोक्रेसी रन कर रही हो. सो टू एंश्योर दैट यू हैव टू कम आउट और रिप्लेस नो कॉन्फिडेंस मोशन विद द कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब इसकी जरूरत आपके साइमल्टेनियस इलेक्शंस में क्यों पड़ेगी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर सपोज करिए कि अगर आपने गवर्नमेंट बनाई, ये दिसंबर वाली गवर्नमेंट को आपने क्लब कर दिया और आपने इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिए. अब नेक्स्ट ईयर जनवरी 2022 में, मतलब इस गवर्नमेंट के टेन्योर के ठीक एक महीने बाद ही कोई एक सरकार बनी और वो कोलैप्स हो जाती है, उसके जो एमएलएज हैं वो डिफेक्ट कर जाते हैं, या कोई सरकार बनी ही नहीं, वहां पे हंग असेंबली बन गई, या वहां पे कोई भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं अचीव हो पाई, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो दिस इज वन प्रॉब्लम. एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि जनवरी 2022 में अगर वहां पे कोई सरकार बनती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये सरकार गिर जाती है एंड देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू मेक गवर्नमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, अगेन बिकॉज ऑफ हंग असेंबली. तो उस केस में क्या होगा? क्या ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट 2.5 साल के लिए वेट करेगा कि नेक्स्ट फेज आएगा तब हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू एंश्योर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आप तभी लेके आओ जब कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, या तब जब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो, ताकि ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2.5 years. So this is very important here.
Now, let us look at some of the challenges that this particular idea has. Simultaneous elections के साथ आपको एक बहुत ही जुड़ा हुआ एक फ्रेज मिलेगा. Always you will find a common phrase related to simultaneous elections in India, which says that simultaneous elections in India is a desirable idea, but it is not practically feasible idea. So though it is desirable, but it is not feasible. अब इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, ये आपको चैलेंजेस जानने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा. द फर्स्ट रीजन वाई इट इज सेड is that you have to empower parliament. For empowering parliament you need to amend constitution. जब आपको constitution को amend करना है यहाँ पे, so basically you are trying to change the federal structure of a country, and for such kind of amendments under article 368 of our constitution you need to take ratification of at least 50% of the states. अब ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो स्टेट्स का आप टेन्योर कम करने वाले हैं, जिनको आपको क्लब करना है, वो स्टेट्स यहाँ पे डेफिनेटली एग्री नहीं होंगे, और ऐसी पावर्स पार्लियामेंट के हाथ में देने के लिए अगेन बहुत ही कम स्टेट्स होंगे जो एग्री करेंगे, स्पेशली आफ्टर द जीएसटी रोल आउट और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. तो जीएसटी काउंसिल में इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे रेवेन्यू रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्टेट, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन मेजर शेयर ऑफ देयर रेवेन्यूज और मेजर शेयर ऑफ देयर टैक्स कलेक्शन सोर्सेज टू द जीएसटी काउंसिल और टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन से. तो इस तरीके से अब वो दोबारा दे विल नॉट give such powers to parliament because there are chances of it getting misused. हो सकता है वो ड्यूरेशन को कम करना और ज्यादा करना, दे डू इट इन इवन नॉर्मल टाइम्स में भी अगर किसी रूलिंग पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट में सरकार नहीं बनती है तो वो उस पावर का यूज करके उसका ड्यूरेशन कर्टेल करके उसको नेक्स्ट फेज में क्लब कर सकता है. तो देयर आर चांसेस ऑफ मिसयूज, और मिसयूज का जो इशू है वो एक डिफरेंट इशू है, उसको हम अलग से फिर से टैकल करेंगे. बट द मेजर इशू आउट हियर इज हाउ आर यू गोना अमेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ आर यू गोना अचीव द रिक्वायर्ड कंसेंसस ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स फॉर सच काइंड ऑफ अमेंडमेंट. सेकेंड प्रॉब्लम यहां पे आती है दैट सच काइंड ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ simultaneous elections in our country will definitely lead or impact voters behavior. ये बहुत ही important है और थोड़ा सा conceptual भी है कि वोटर पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बिहेवियर पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है इफ यू कम आउट विथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस. यहां पे आप समझने की कोशिश करिए. 3 पॉइंट्स की मैं आपसे बात करूंगा. फर्स्ट पॉइंट इज हमारे देश में पॉलिटिकल लिटरेसी ऑलरेडी बहुत ही कम है. मैं यहाँ पे नॉर्मल लिटरेसी रेट्स की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लिटरेसी, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मासेस इन आवर कंट्री. स्टिल इन आवर कंट्री देयर आर मेनी issues. There are often elections in a country are fought on issues like religion, caste, and on communal distress, communal harmony, communal violence. तो हमारे देश में आज भी मुद्दे, बेसिक मुद्दे ग्रास रूट लेवल पे यही रहते हैं. और एक ये आप नीड में भी इंक्लूड कर सकते हैं. मैं इसको आपको नीड में बताना भूल गया. आई एम रियली सॉरी कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे देश में हर साल, मैं दोबारा नीड पे आया हूँ जस्ट फॉर 1 पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप नीड में ऐड कर लीजिएगा कि हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है. क्योंकि हमारे देश में हर साल इलेक्शंस होने के कारण वी आर कंटिन्यूसली इन इलेक्शन मोड, एंड बिकॉज वी आर इन अ कंटिन्यूस इलेक्शन मोड तो ये पर्टिकुलर इश्यूज हमेशा प्रिविलेंट रहते हैं हमारे देश में, दोज ऑफ रिलीजियन, कास्ट एंड कम्युनल डिस्ट्रेस, कम्युनल वायलेंस और कम्युनल हार्मनी. एंड दिस फ्रेगमेंट्स आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी फर्दर इससे ऊपर बढ़ के इलेक्शंस में बात नहीं कर पाती है ऑन द इश्यूज लाइक दोज ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट. इस पे हम बात नहीं कर पाते हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज भी दे आर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड इन देयर कैंपेनिंग्स
टू दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो इसीलिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर आ जाएंगे तो आप एक साल में इलेक्शन करेंगे तो ये आप इंश्योर कर सकते हैं कि नेक्स्ट 5 सालों तक लोग इन टॉपिक्स पे ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। अब मैं वापस चैलेंजेस पे आता हूं, ये पॉइंट आप नीड में प्लीज ऐड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वापस मैं चैलेंजेस पे आता हूं कि इंपैक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ वोटर्स, इंपैक्ट ऑन वोटर्स बिहेवियर कैसे आएगा यहाँ पे। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि पॉलिटिकल लिटरेसी हमारे देश में बहुत कम है। अब जब आप एक साथ 2 वोट्स कास्ट करने को बोलेंगे एक पर्टिकुलर वोटर को, एक पर्टिकुलर वोटर है उसको एक ही दिन में 2 वोट्स कास्ट करने हैं, एक करना है जनरल इलेक्शंस के लिए और एक करना है स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी very aware enough that that particular individual will cast that particular vote in a right manner। उसको ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वोट उसको जनरल असेंबली इलेक्शंस के लिए करना है और कौन सा वोट उसको स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए करना है। और सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी उसको यहां पे डिफरेंशिएट करने में कि जनरल असेंबली इलेक्शंस के लिए मुझे क्या सोच के वोट करना है और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए मुझे क्या सोच के वोट करना है। सो दिस बेसिक डिफरेंस विल फेड अवे। वो एक ही मुद्दे के बेसिस पे जनरल इलेक्शंस का भी वोट कास्ट करेगा और वो एक ही मुद्दे के बेसिस पे स्टेट असेंबली इलेक्शन का भी वोट कास्ट करेगा। एंड दैट सिंगल इशू मोर इन अ मोर लाइकली मैनर that will be an issue of national importance, or that issue would be a national issue, because national issues are the one which remain to a longer extent and which penetrate further into the सोसाइटी ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। क्योंकि नेशनल पार्टीज हमारे देश में उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है एंड ऑल्सो नेशनल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे देश में ज्यादा है देन दोज ऑफ द रीजनल मीडिया एंड रीजनल पार्टीज। इसीलिए कोई भी अगर नेशनल इशू होगा तो वो नेशनल इशू के बेसिस पे अपनी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी वोट कास्ट करेगा। एंड दिस इज हाउ बिहेवियर ऑफ वोटर इज गेटिंग इंपैक्टेड बिकॉज ही और शी इज नाउ आस्क्ड टू कास्ट ऑन अ सिंगल डे 2 वोट्स। तो उसको पहले तो ये समझाना मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में वोटर्स को कि आपको 2 वोट्स क्यों डालने हैं। ये कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे देश में बिकॉज ऑफ लो लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल लिटरेसी। सेकेंड पॉइंट यहीं से सामने आता है कि रीजनल पार्टीज को यहाँ पे लॉस होगा बिकॉज रीजनल पार्टीज के मुद्दे, उनके इश्यूज यहाँ पे उतने रेलेवेंट नहीं होंगे जितने नेशनल पार्टीज के यहाँ पे इश्यूज रेलेवेंट होंगे बिकॉज दे हैव वाइडर रीच, दे हैव वाइडर पेनिट्रेशन इन द सोसाइटी। एंड सो इट इज मोर लाइकली दैट नेशनल पार्टीज यहां पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी ओवरकम कर जाएंगी रीजनल पार्टीज को। तो वो रीजनल पार्टीज को भी यहां पे डिफीट इजीली कर सकती हैं बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एंड लास्टली one thing that you will talk about here is that And lastly, one thing that you will talk here about is that you basically are not allowing, आप यहाँ पे पहले पॉलिटिकल अवेयरनेस उस लेवल पे आने दो हमारे देश में, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम आउट विद सच कॉन्सेप्ट्स इन आवर कंट्री, एंड then it will be really possible for us for an effective rollout of such a concept and its अल्टीमेट रियलाइजेशन एज वेल। इसका हम पूरे तरीके से फायदा ले पाएंगे बिकॉज एज ऑफ नाउ यहाँ पे पॉलिटिकल लिटरेसी कम होने के कारण, रीजनल पार्टीज का यहाँ पे फेड होने के कारण आपको जो नेक्स्ट मुद्दा देखने को मिलेगा दैट वुड बी ऑफ फेडरल सेटअप्स डिक्लाइन। तो फेडरल सेटअप हमारा जो देश का है दैट विल स्टार्ट टू इरोड और डिक्लाइन बिकॉज रीजनल पार्टीज का यहाँ पे सिग्निफिकेंस कम हो रहा है। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑन वोटर्स बिहेवियर। तो तीसरा पॉइंट हम फेडरल सेटअप का अलग से उठा लेते हैं दैट फेडरल सेटअप हमारे देश में कैसे एरोड हो रहा है। तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि रीजनल पार्टीज का यहाँ पे इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, नेशनल पार्टीज यहाँ पे ओवरकम कर जाएंगी ऑन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस एज वेल।
सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मिस यूज हो सकता है, जो पॉइंट मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करेंगे और वो अमेंडमेंट्स हर बार सही चीज के लिए इस्तेमाल करे जाएंगे. यू कैन नॉट इंश्योर इट बिकॉज वी हैव नाउ मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ द मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ आवर कंट्री. तो अगर आपके पास ये पावर आ गई दैट you have the power to either extend the tenure of a particular state government or reduce the tenure of a particular state government, then that can be misused as well by the ruling party at the central government. तो यहाँ पे misuse के concepts, misuse के यहाँ पे fears increase हो सकते हैं आने वाले टाइम में. नेक्स्ट पॉइंट challenges में, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी. हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी हम इंश्योर करते हैं हर साल, बिकॉज एवरी पार्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स विन एट द सेंट्रल लेवल और एट अ पर्टिकुलर स्टेट लेवल, दैट पार्टी हैज अगेन it has to come again before the public for votes. वो फिर से कोई ना कोई इलेक्शन लड़ रही होती है. जैसे अभी नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई है, पार्लियामेंट में वो आ गई है, तो अब उसको स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना है. उसको स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शन लड़ना है, तो वो हर बार स्टेट गवर्नमेंट्स में आएगी और पब्लिक को फेस करेगी. सो दिस इज बेसिकली द अकाउंटेबिलिटी फैक्टर मेंशन्ड आउट हियर, जो पॉलिटिकल पार्टीज को हर साल करना पड़ता है. हर साल उन्हें प्रूफ देना पड़ता है दैट यस वी आर फंक्शनिंग वेल, नॉट only in a state government but also in the central government or also at a central level if we exist out there. And if you come out with simultaneous elections, तो political parties को सिर्फ 2.5 साल में एक बार फेस करना पड़ेगा पब्लिक को. और अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस 5 साल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, तो 5 साल में एक बार पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक के सामने आएंगी एंड देयर अकाउंटेबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5 टाइम्स. बिकॉज अभी हर साल आती है पॉलिटिकल पार्टी, हर साल उसको पब्लिक को फेस करना है, उसके रिजल्ट्स क्लियरली शो करते हैं, एंड दिस डेफिनेटली अफेक्ट्स द गवर्नेंस ऑल्सो. बिकॉज अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता चल गया कि एक बार जीतने के बाद वी हैव अ सिक्योर्ड टेन्योर ऑफ 5 years, देन इट इज पॉसिबल कि वो अपने उतना एफिशिएंटली काम ना करें. हमारी जो गवर्नेंस मशीनरी है वो उतना एफिशिएंटली उस वक्त काम ना करे. तो अकाउंटेबिलिटी अभी मेंटेन्ड है. साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बाद अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है. अब एक और लास्ट यहां पे चैलेंज आता है कि आप इसको बेसिकली रोल आउट कैसे करोगे. हाउ आर यू गोना रोल इट आउट. सपोज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हंग असेंबली का. आप कोई भी स्कीम ले लो, 5 साल में एक बार इलेक्शन करना है या 2.5 साल में आधे स्टेट्स के इलेक्शन करना है. आपने कोई भी स्कीम के थ्रू इलेक्शंस किए और अगर इलेक्शन का रिजल्ट आया दैट ऑफ हंग असेंबली, तो आपको दोबारा इलेक्शंस करने पड़ेंगे. एंड फॉर दैट, if you do that, you again have defeated the very concept of simultaneous elections. सिमिलरली अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो अगेन आपको इलेक्शन करने पड़ेंगे. आप उसके लिए 2.5 साल या अगले 5 साल तक वेट नहीं कर सकते हो. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, इश्यूज दैट डेफिनेटली हिंडर्स द रोल आउट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस. अब यहाँ पे बात ये होती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह तो हम कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं, बट दैट इज इवन मोर डिजास्ट्रस. आप ऑलरेडी देखिए कि हमारे यहाँ गवर्नर्स के ऊपर कितने ज्यादा एलिगेशंस हैं ऑफ मिस यूज ऑफ देयर पावर. रीसेंट एग्जांपल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जहां पे एक ऐसी पार्टी को ओथ लेने के लिए बोला गया, एक ऐसी पार्टी को के लीडर को सीएम बनाया गया जिसके पास मेजॉरिटी नंबर्स नहीं थे. अब वो पार्टी वहां पे रूलिंग पार्टी बन गई विच डज नॉट हैव द मेजॉरिटी नंबर्स. अगर यहां पे कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई आप करोगे तो इस पार्टी को कभी कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, बिकॉज बाकी पार्टीज के पास भी मेजॉरिटी नंबर्स नहीं है. और क्योंकि बाकी पार्टीज के पास मेजॉरिटी नंबर नहीं है और क्योंकि गवर्नर ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके लीडर अपने हिसाब से चूज कर लिया है, सो यू बेसिकली हैव फेल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी आउट हियर. दो दैट पार्टी इज नाउ रूलिंग यू
or a particular state which did not have majority. तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को तो चेंज नहीं कर सकते टू कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि इसका मिस यूज के चांसेस ज्यादा हैं। ये ऑलरेडी हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, एंड इवन इन दी अरुणाचल प्रदेश इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो इस चीज को तो आप यहाँ पे, और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है, मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को तो आप डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन आप अलाउ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू फिर से सरकारें गिरेंगी और फिर आपको इलेक्शंस करने पड़ेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट वेट फॉर नेक्स्ट 2.5 ईयर्स और 5 ईयर्स फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस और नेक्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रिसोर्सेज। क्या हमारे देश में इतने रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन एंड बोथ? Do we have that capacity to conduct pan India level election, जिसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं फॉर स्टेट असेंबली एंड फॉर द नेशनल पार्लियामेंट और फॉर द नेशनल असेंबली एज वेल? तो क्या इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं? द आंसर डेफिनेटली इज नॉट रियली। वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए हम इलेक्शंस फेज्ड मैनर में करते हैं और हम पार्ट्स में करते हैं। तो पैन इंडिया लेवल पे एक साथ इलेक्शन करना एट ऑन सच अ लार्ज स्केल इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। यहाँ पे फिर बात होती है बाकी कंट्रीज की, कि बाकी कंट्रीज में भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस अवेलेबल हैं। तो बाकी कंट्रीज को आप याद रख सकते हैं टू एज एन एग्जाम्पल, और उनको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो कंट्रीज आर देयर लाइक ब्राजील, कोस्टा रिका, कोलंबिया एंड निकारागुआ। तो ये कंट्रीज पे आप ध्यान दीजिए दैट दीज कंट्रीज डू नॉट हैव दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विच वी हैव इन इंडिया। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और क्योंकि हमारा जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है। ब्राज़ील की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे जोग्राफिकल टर्म्स में, बाकी कंट्री को आप ले लीजिए, और पॉपुलेशन डेंसिटी में आप कोई भी कंट्री ले लीजिए। पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी ज़्यादा है, जोग्राफिकल एरिया हमारा ज़्यादा है, और इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे बेसिकली डिसाइड होता है नंबर ऑफ सीट्स इन अ पर्टिकुलर असेंबली और इन द पार्लियामेंट। तो जब आपका बेस इतना बड़ा है तो आपका पास डेफिनेटली मल्टीपल रीजनल पार्टीज होंगी, मल्टीपल आपके पास यहाँ पे सीट्स होंगी, विच इज नॉट द केस इन सच कंट्रीज बिकॉज दे हैव स्मॉल पॉपुलेशन बेस एंड ऑल्सो स्मॉल टेरिटोरियल एरिया। तो वहां पे आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक देश में 4 स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहां पे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप उनके इलेक्शन साथ में करवा दो। लेकिन इन इंडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल, वेयर यू हैव 28 स्टेट्स and also there is so much of diversity within them with respect to regional parties representation and the representation of national parties। तो हमारे देश में ये इसीलिए आइडिया पॉसिबल नहीं है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि 1951 से लेके 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस हमारे देश में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है। दोज वर बेसिकली नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शंस through a deliberate attempt, those were simultaneous elections by default, क्योंकि तब एक ही पार्टी हुआ करती थी। जब से रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई, बाकी नेशनल पार्टीज इमर्ज हुई, तो 1967 के बाद आप इंश्योर नहीं कर पाए कि आपके देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जा सके। एंड इट वॉज पॉसिबल ओनली अप टिल 1967 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सो दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन वॉज बाय डिफॉल्ट एंड नॉट अ डेलिबरेट एक्शन बाय अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। लास्ट इसका कंक्लूजन आप ऐसा कर सकते हैं दैट सो मच ऑफ एफर्ट, सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो मच ऑफ अमेंडमेंट्स यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन so that you can roll out simultaneous elections. So the idea definitely is desirable, but it is not feasible first of all, and secondly such efforts, such investment of resources rather can be channelized towards more constructive electoral reforms in our country। आप पॉलिटिकल लिटरेसी हमारे देश में बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरनल डेमोक्रेसी इंप्रूव करने में ध्यान दीजिए, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे ध्यान दीजिए, यूज ऑफ मनी पावर को कर्ब करने में ध्यान दीजिए, एंड बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हमने प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के वीडियो में डिस्कस करे हैं, उन सबको आप रोल आउट करने की बात करिए, स्पेशली स्ट्रेंथनिंग द ECI ऑफ आवर कंट्री।
तो आपका देश में इलेक्शंस ऑलरेडी अच्छे हो जाएंगे, इंप्रोवाइज हो जाएंगे, गवर्नमेंट्स की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, एंड द कॉस्ट दैट यू आर नाउ पुटिंग इन इनटू द मल्टीपल इलेक्शंस दैट यू हैव टू कंडक्ट, दैट कैन इजीली बी covered through the good governance that will be ensured if you put in such number of efforts in the ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो ये एफर्ट्स आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में लगाइए, उससे जो गवर्नेंस का आउटपुट आएगा वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी अभी कॉस्ट लग रही है इलेक्शंस करने में। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजों को आप फर्दर रैशनलाइज कर सकते हैं, बट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आप ज्यादा फोकस करिए। इतना आप डेलिबरेशन का, कंसिडरेशंस का, कंसल्टेशंस का और रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट आप वहां करेंगे तो वो बेटर एक आइडिया होगा, एंड इट विल बी फीजिबल एज वेल, सो दैट विल बी डिजायरेबल एंड फीजिबल बोथ। दिस इज बेसिकली ओनली डिजायरेबल बट इट डज नॉट हैव प्रैक्टिकल feasibility attached with it. So this was everything that you need to know about simultaneous elections, a very important topic. Please इसमें keywords पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आप पिक करिएगा जो आप एग्जामिनेशन में यूज करेंगे, बोथ एट द मेंस स्टेज एंड एट द इंटरव्यू स्टेज। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि आप लोग मस्ट रीड करेंट अफेयर्स कोर्स ज्वाइन करिए ऑन अन अकेडमी app, which is absolutely free of cost, because these are the special classes that I take on daily basis. Must read current affairs, you can find link in the description box below. mittal.naman29 के नाम से link होगी, you can click on it, follow my profile on an academy app, and you will get regular notifications with respect to all the special classes, absolutely free classes that I take on an academy application as well. And if you are willing to take an academy subscription, then please do use my code naman to get extra 10% off. So my code is naman, NAMAN. Please do use it if you are willing to take an academy subscription. Otherwise please follow me on an academy app ताकि आपको must read current affairs के through current affairs का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले, एज वी हियर नॉट ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स बट ऑल्सो try to develop skills so that we can apply those current affairs in the examination. Thank you all for your patient listening. Have a great day ahead.